Yes, a very good morning, all. And how many of you have really understood yesterday's class where we discussed the oxides and halides of group 16? तो ग्रुप 16 का हेलाइड्स सबको Yes. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Anyone who has got a doubt with group 16 halides? Because it is something which you have to understand properly, sir. देखिए, हम लोगों ने क्लियरली बताया सर, हेलाइड्स कैन बी ऑफ द फॉर्म EX6, they can be of the form EX4, they can be of the form EX2, and they can also be of the form EX, but they will not exist as EX, they will exist as E2X2. They will form dimer. Okay, so let me explain it once again, one final time, and then we will move ahead. So I told you very clearly, sir, among hexahalides, only fluorides are the most stable ones. Is there any issue with this? No, sir. No, sir. And among fluorides, especially SF6, sulfur hexafluoride is exceptionally stable. Means it is very stable. बहुत अच्छा बात. इसके पीछे रीजंस क्या था, क्यों सिर्फ फ्लोराइड्स बनता था? तो हम लोगों ने देखा फ्लोरीन का साइज छोटा. Very good. Due to the small size of fluorine, okay, it can be easily accommodated around the central atom. That can be your सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, किसी के अराउंड भी हम लोग 6 फ्लोरीन्स को अरेंज कर सकते. बट फ्रॉम फ्लोरीन as we move to chlorine, bromine, iodine, obviously their size increases, and hence arranging them around a molecule or an atom becomes difficult due to the steric reasons. Yes. Now, once we have understood the hexafluorides, we know that hexafluorides are going to have what structures, sir? 6 bonds, 0 lone pairs, 6 bond pairs. So obviously it will be octahedral. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. So the shape is going to be octahedral, and hybridization is going to be sp3d2. sp3d2 is going to be the hybridization, and they are going to be octahedral. sp3d2 will be the hybridization, octahedral will be the shape of all the hexahalides which are stable. उसके बाद हमें पता चला कि सर +6 तो सब लोग शो नहीं कर सकते, फ्लोरीन तो शो नहीं कर सकता क्योंकि सॉरी फ्लोरीन आई एम सॉरी, ऑक्सीजन तो शो नहीं कर सकता है क्योंकि उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं है, सर. और नीचे जब आते हैं सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम में प्रॉब्लम ये है कि सर इनके पास ना वैकेंट डी ऑर्बिटल्स तो है, लेकिन इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से इनर s इलेक्ट्रॉन्स जो है पार्टिसिपेट नहीं करेंगे बॉन्डिंग में. यस और नो? Yes, sir. तो इसीलिए कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट नेक्स्ट हम लोगों को पता चलेगा? +4, which is 2 units less than the group oxidation state. इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से जब 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे बॉन्डिंग में तो +4 आ जाता है. तो इसीलिए हम लोगों ने नेक्स्ट आया EX4 पे. EX4 में मैंने बोला लगभग सारे हेलाइड्स हम लोगों के बनते हैं SF4, SCF4, TEF4, और इनका हाइब्रिडाइजेशन भी मैंने बताया that they are going to have an hybridization of sp3d. What hybridization they are going to have? They are going to have an hybridization of sp3d. Okay. Now, having a hybridization of sp3d, what type of structure will they have? Okay, arrangement of electrons will take place in which way, sir? Trigonal bipyramidal. कौन सा शेप रहता है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. ये इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट होता है, बट शेप ऑफ द मॉलिक्यूल क्या होता है? सीसॉ.
Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, very good sir. In the same way sir, अगर +4 के साथ साथ ये एलिमेंट्स जो हैं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकते हैं। क्यों, कैसे? बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने पे ये अपना हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन पे आ रहे हैं। तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहता है? सो बहुत ही क्लियर है सर, ये सिंपल sp3 हाइब्रिडाइज्ड रहता है ना। क्यों sp3 हाइब्रिडाइज्ड? क्योंकि सर 2 बॉन्ड पेयर के लिए 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल तो है हमारे पास, लेकिन इनके पास 2 लोन पेयर भी बच जाते हैं। उनके लिए हम लोगों के लिए क्या करना पड़ता है, 2 और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स लेके रखना पड़ता है। तो इसीलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp3। और इसका शेप मैंने क्या बता दिया सर, बेंड शेप होता है। कोई प्रॉब्लम है इसमें? No, sir. No, sir. ओके अब लास्ट में मैंने क्या बताया, अब आता है हम लोगों का मोनोहेलाइड्स। आप लोग देखेंगे कि हमारे जो 16th ग्रुप एलिमेंट्स हैं इनमें से कुछ मोनोहेलाइड्स भी बनाते हैं। दैट मींस एक सल्फर सिर्फ एक फ्लोरीन के साथ ही बॉन्ड बनाया है, SF। एक सल्फर एक ब्रोमीन के साथ ही बॉन्ड बनाया है, SBr। एक सेलेनियम जो है एक ब्रोमीन के साथ बॉन्ड बनाया है, SeBr, एक कंपाउंड बना। ये वेल नोन है, ये हमें काफी दिखते हैं जनरली। हम लोगों को इन कंपाउंड्स को हम लोग जनरली देखते हैं, पता चलता है हम लोग को ये कंपाउंड्स बनते हैं। वेल नोन कंपाउंड्स हैं मोनोहेलाइड्स, सिंगल हेलोजन, बट दे डू नॉट एग्जिस्ट एज मोनोहेलाइड्स। ये इमीडिएटली क्या हो जाते हैं, डाइमराइज हो जाते हैं। मतलब एक SeBr दूसरा SeBr साथ में बॉन्डिंग कर लेते हैं और ये बन जाता है Se2Br2। उसी तरह से SBr, they won't exist as SBr, they form S2Br2। क्या ये बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. और ये जो हमारे डाइमर्स हैं, डाइहेलाइड्स मींस मोनोहेलाइड्स के जो डाइमर्स हैं, ये क्या करते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेट करते हैं। ये बनाते हैं हम लोगों को SBr4 प्लस S। ओके ये जब डिस्प्रोपोर्शनेट करते हैं तो देखिए SBr में सल्फर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जब SBr4 में जाता है सल्फर +4 में चला जाता है और यहाँ 0 में आ जाता है। तो ये एक इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट से ओके ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है। सो यह हम लोग इसको एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। क्या अब समझ में आया हैलाइड्स ऑफ ग्रुप 16? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ का हर एक पॉइंट पे एक क्वेश्चन है सर, आप बिलीव करो ना करो। इस बार आप लोगों का एग्जाम पैटर्न जो है सिंपल न्यूमेरिकल, मतलब तुम लोगों का जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होने वाले हैं। हर जगह एक क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ EX4 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ग्रुप 16। हम लोगों को पता होना चाहिए sp3d, या नहीं तो देगा SF4 molecule has a hybridization of sp3d. How many bond pairs and lone pairs do you expect it to have? तो हम लोगों को सिंपली सेंट्रल एटम को ड्रॉ करना है, एक बार चेक करना है कितने बॉन्ड पेयर्स हैं कितने लोन पेयर्स हैं, और हम लोगों को इसका आंसर बताना है। So I want you people to be very careful because these are the places where you will get questions from. So both in your NEET and as well as in your JEE. You people will be quite surprised to see previous year questions. आप लोग अगर देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को तो आप लोगों को पता चलेगा कि सर हम लोग क्लास में जो कुछ भी बात कर रहे हैं, जो कुछ भी हम लोग पढ़ रहे हैं, वही स्ट्रेट फॉरवर्ड हम लोगों को जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मिलता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। There is an example question over here and an in-text question. Let us understand. Number 1, H2S is less acidic than H2TE. आंसर पता है हम लोगों को? Yes, sir. As we go from top to bottom, bond dissociation enthalpy decreases and hence acidic strength of the hydrides increases. Yes or no? Yes. Yes, sir. ये ग्रुप 15 में भी ट्रू था, ये ग्रुप 16 के लिए भी ट्रू है। यस वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। लिस्ट द 3 इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ सल्फर।
क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं 3 इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ सल्फर? बताइए। सारे सल्फाइड ओर्स, ZnS जिंक ब्लेंड, PbS लेड सल्फाइड, यस और नो? कॉपर पायराइट्स, ओके। तो ऐसे बहुत सारे सल्फर के जो है हम लोगों ने सोर्सेस ऑलरेडी देखा हुआ है, ओके। अकरेंस में हम लोगों ने देखा है सल्फर कैन एग्जिस्ट एज दीज पर्टिकुलर थिंग्स। कॉपर पायराइट्स देखे थे हम लोग, राइट। PbS देखे थे, जिंक ब्लेंड देखे थे, गैलेना, PbS लेड सल्फाइड, है ना, एप्सम, जिप्सम, एप्सम, कितना कुछ देखे थे, isn't it? All of these are nothing but your sources of sulfur. बहुत अच्छा बात। Write the order of thermal stability of hydrides of group 16. कौन बताएगा फटाफट? Top to bottom thermal stability decreases. डिक्रीज होता है। डिक्रीज होता है, वेरी गुड। डिक्रीज होना चाहिए टॉप टू बॉटम हमारा थर्मल स्टेबिलिटी, बिकॉज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज हो जा रहा है। देखिए सर कितना कनेक्टेड है, आप लोग देखिए। द सेम थिंग इज ट्रू फॉर इवन योर 15th group elements and the same thing is true even for your 16th group elements, right? Same to same, nothing different. Okay, next, why H2O is a liquid and H2S is a gas? क्या हमें पता है आंसर? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। Very good. Intermolecular हाइड्रोजन hydrogen bonding. Very good, sir. Very good. Chali. Now let's move ahead and let's try to understand other things from this chapter. Now we will understand the preparation methods of dioxazine. Now tell me, sir, whenever I say preparation method of oxygen, okay, dioxazine का preparation method, O2 का preparation method, सबसे पहला प्रिपरेशन मेथड आप लोगों को क्या याद आता है? फ्रॉम एयर। इतना टाइम लग रहा है इसको बोलने के लिए? द फर्स्ट preparation method which should come to your brain is from air. I told you already, even in the previous chapter I talked about this preparation method of nitrogen. I told you the free resource, raw material is free of charge, air. Anyone can use air, right? So air, we will take air and we will liquefy it, right? So liquefaction of air, okay, liquefaction of air gives us nothing but oxygen. I already talked about this. While we are liquefying air, first of all nitrogen is removed and then oxygen is removed. पिछले बारी में बता दिया था इसके बारे में, yes or no? Yes, sir. So preparation of oxygen. So the first preparation method which we will see is, we will see oxygen containing salts, sir. What we will do? We will take oxygen containing salts and we will thermally decompose them. What we will do? We will thermally decompose them. That means we are simply going to heat them strongly such that it will decompose in order to give you oxygen gas. याद कीजिए, जैसे हम लोग नाइट्रोजन गैस प्रिपेयर करने के लिए नाइट्रोजन कंटेनिंग सॉल्ट्स को थर्मली डिकम्पोज कर रहे थे, उसी तरह से ऑक्सीजन गैस को प्रिपेयर करने के लिए ऑक्सीजन कंटेनिंग सॉल्ट्स को हमें डिकम्पोज करना है। तो अगर तुम लोग मुझे पूछोगे सर क्या सर हर ऑक्सीजन कंटेनिंग सॉल्ट को हम लोग डिकम्पोज कर सकते हैं? नहीं, कुछ कुछ ऑक्सीजन कंटेनिंग सॉल्ट्स ऐसे होते हैं जिन्हें डिकम्पोज करने के लिए 2000-3000 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना पड़ेगा, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। मतलब प्रैक्टिकली उतना हाई टेम्परेचर मेंटेन करके ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करने का कोई जरूरत नहीं है। सो दैट इज व्हाई what we are trying to say here is, we especially will choose such type of salts which can be thermally decomposed at little lower temperatures than other. So you see,
we can take chlorate salts, we can take nitrate salts, or we can take permanganate salts. We can take chlorates, we can take nitrates, or we can take permanganates, and we can heat them strongly. We can thermally decompose them in order to get your dioxygen. For example, you can take KClO3, potassium chlorate, and you can heat it strongly, thermally decompose it, okay, in the presence of manganese dioxide, which will act as a catalyst. मैंगनीज डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में इसको स्ट्रांगली हीट कीजिए. What will happen, sir? Your KCl will come out and dioxygen will be released. So you will have this 3O2, this is 2, and this is 2 KCl. So we have this where our KClO3, that is potassium chlorate salt, is getting decomposed thermally in order to give us KCl and 3 moles of oxygen, right? So the first preparation method, once again, this can be compared and remembered. Okay, this can be compared and remembered. Okay, sir, in case of your nitrogen also, we were taking azides. We were taking what, sir? Azides. We were taking barium azide, sodium azide, potassium azide. Okay, and we were heating them strongly. वहां पे हम लोगों को नाइट्रोजन गैस मिलता था एंड रेस्पेक्टिव मेटल जो है वो आ रहा था. उसी तरह से यहाँ पे जो है, अगर मैं क्लोरेट सॉल्ट को लेता हूँ और उसे अगर मैं डिकम्पोज करता हूँ तो मुझे पोटेशियम क्लोराइड एंड अलोंग विद दैट ऑक्सीजन गैस विल बी रिलीज्ड. इज देयर एनी प्रॉब्लम विद दिस? No, sir. No, sir. तो No, sir. यस, MnO2 एक कैटलिस्ट है, तो ऑब्वियसली रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस करता है. क्या करता है? रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से रिएक्शन थोड़ा सा फास्ट हो जाता है. So MnO2 is going to act as a catalyst in this particular reaction. Is that okay? Yes, sir. Yes. Yes. Let us go for the second method. In the second method, you can take any higher metal oxides. Higher metal oxides means your D block metal oxides or your heavy metal oxides हम लोग लेंगे. Okay, heavy metal oxides, and we will heat them strongly. We will decompose them strongly. What will we get? Say for example, Az2O. Heat it strongly, undergo thermal decomposition. सिल्वर सॉल्ट जो है मेल्ट होके बाहर निकल जाएगा और ऑक्सीजन गैस जो है रिलीज हो जाएगा. नहीं तो लेड ऑक्साइड ले लेंगे, से फॉर एग्जांपल PbO2. तो लेड ऑक्साइड में भी क्या होगा सर? आप लोगों का स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने पे आप लोगों का डिकम्पोजिशन होगा. PbO2 लेड डाइऑक्साइड में से PbO बनेगा लेड ऑक्साइड, एंड अलोंग विद दैट ऑक्सीजन गैस जो है लिबरेट होगा. तो यहाँ पे याद रखने वाला बात क्या है? हेवी मेटल ऑक्साइड्स जो कि ट्रांजिशन मेटल्स में आते हैं हम लोगों के. ओके, ट्रांजिशन मेटल्स में डी ब्लॉक में हम लोगों के जो मेटल्स आते हैं, उन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं, उनको अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग हीटिंग देते हैं, इन दैट केस इट इज पॉसिबल दैट हम लोगों का जो है वो मेटल जो है वो मेल्ट होके बाहर निकल जाएगा, या उसका रेस्पेक्टिव ऑक्साइड जो है वो निकल जाएगा, और ऑक्सीजन गैस जो है डिकम्पोज होके बाहर आएगा. नाउ टेल मी, इज देयर एनी प्रॉब्लम इन दीज टू मेथड्स? No, No, sir. sir. No, sir. No, sir. Okay, so these are two simple, or we can say लैब में भी इसको कर सकते हैं हम लोग. अदरवाइज इंडस्ट्रियली भी हम लोगों को इन मेथड्स, एक्चुअली स्पेशली ऑक्सीजन का कोई इंडस्ट्री हम लोग सेटअप करके, मतलब इन दोनों मेथड से सेटअप नहीं करते हैं. ओके, कुछ इंडस्ट्रीज होता है जहां पे क्लोरेट सॉल्ट्स को हीट किया जाता है कुछ और काम के लिए, तो वहां पे ऑक्सीजन गैस बाई प्रोडक्ट के जैसा मिलता है, जिसको कि वो लोग सिलेंडर्स में फिल करके बेच देते हैं. दिस इज वन वे.
और ऑक्सीजन प्लांट्स अभी नया सेटअप किया गया है, और जितने भी ऑक्सीजन प्लांट सेटअप किए जाते हैं वो केमिकल्स से नहीं बनाते ऑक्सीजन, वो एयर से ऑक्सीजन को बनाते हैं। वी विल टेक एयर, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, पहले उसको हम लोग प्रेशराइज करते हैं उसको, उसके बाद हम लोग क्या है उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं कंप्रेस करने के बाद, एंड वी विल प्रोड्यूस डाइऑक्सीजन। तो ये जो मेथड्स आप लोग देख रहे हैं, मैं अगर बोलूं ये लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड्स है, कुछ गलत नहीं होगा। ओके, लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड और इंडस्ट्रियली स्पेशली ऑक्सीजन प्रिपेयर करने के लिए रिएक्शंस नहीं होते हैं। ये रिएक्शंस में ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के जैसा बहुत बार मिलता है। क्या ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए एक और मेथड देखते हैं हम लोग। सो द थर्ड प्रिपरेशन मेथड क्या है? So the third preparation method is actually from your peroxide, hydrogen peroxide, that is your H2O. हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 के कुछ खासियत है। It can act as an oxidizing agent and as well as it can act as a reducing agent. Now H2O2, aqueous H2O2 जो कि solution phase में जो हम लोगों को बाहर मार्केट में मिल जाता है, उसको अगर हम लोग डिकम्पोज करते हैं, सिंपल सनलाइट के प्रेजेंस में भी ये डिकम्पोज हो सकता है, ओके, या फिर थोड़ा सा हीट कर देंगे तब भी डिकम्पोज हो जाएगा, इन ऑर्डर टू गिव यू वाटर एंड ऑक्सीजन गैस। इसीलिए आप लोग देखेंगे H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो हम लोगों को मिलता है, वो जनरली या तो प्लास्टिक बॉटल्स में, कलर्ड प्लास्टिक बॉटल्स में मिलता है, नहीं तो अगर बॉटल्स में रखा जाता है तो उसको कैसे रखते हैं सर हम लोग? ब्राउन कलर्ड बॉटल्स में रखते हैं, राइट? ओके, सो बाय डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और वी कैन ऑल्सो डू हाइड्रोलिसिस, सॉरी, वी कैन ऑल्सो गो फॉर इलेक्ट्रोलिसिस। मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इलेक्ट्रोलिसिस करूंगा वाटर का इन द प्रेजेंस ऑफ अ लिटिल एसिडिक मीडियम, थोड़ा सा एसिडिक मीडियम, एंड मैं पास कर दूंगा इलेक्ट्रिसिटी, क्या लगता है आप लोगों को क्या होगा? Sir, split हो जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एसिडिक मीडियम में H2O जो है H प्लस एंड OH माइनस में ब्रेक होगा, Yes, sir. H प्लस चला जाएगा कैथोड के पास, जहां पे H प्लस इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। कहां पे? कैथोड में। Okay, sir. एंड एनोड पे क्या हो जाएगा? आपका OH माइनस जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा O2 में। सो हम लोगों का ऑक्सीजन गैस इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर से भी हम लोगों का बन जाता है। क्या ये कोई प्रॉब्लम है सर इसमें? No, sir. No, sir. sir. So in this way we have seen all the preparation methods of our dioxygen. Okay, so what are the preparation methods did we see? Sir, we saw the preparation method of dioxygen from chlorate salts, nitrates, permanganate, कोई भी salt को, oxygen containing salt को strong thermal heating अगर हम लोग करेंगे, then obviously क्या होगा सर? वहां पे थर्मल डिकम्पोजिशन से ऑक्सीजन गैस रिलीज होने वाला है। हेवी मेटल ऑक्साइड्स अगर हम लोग लेते हैं, लाइक सिल्वर ऑक्साइड, mercuric ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, और अगर इनको हम लोग डिकम्पोज करते हैं, even in that case oxygen gas is released along with the metal oxide. And if I want to prepare it in a lab without taking a lot of thermal energy and all, I can take hydrogen peroxide available in the market. It is available in the form of nail polish remover and other things. You can bring this hydrogen peroxide and you can simply, what can you do sir? You can simply heat it, and the gas which is going to get released is nothing but your oxygen gas. Now, sir, other than this, one more cheaper source of what we say, मतलब electrolysis करके हम लोग ऑक्सीजन गैस को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। So these are the different methods. Along with that, दो और मेथड मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं, that is by fractional distillation of air. Yes or no? So by fractional distillation of air, where air is again a free source
of raw materials, right? Chale. Now let us move ahead and understand the properties of dioxazine. We all know that dioxazine is a colorless, odorless gas. Its solubility in water is approximately, see, if oxygen was not soluble in water, then there would have been no aquatic life, and if there would have been no aquatic life, obviously human beings wouldn't have been possible. If you read the chapter of evolution in biology, you know that how exactly the evolution of such larger species, okay, multicellular species, has taken place from unicellular organisms. So on the Yes. earth, billions of years ago, we had only unicellular species. From there, slowly evolution has taken place, and then finally here we go, multicellular organisms with billions and billions of cells in our body, and with a lot of tissues, organs, and specialized cells, specialized organs doing specific functions. Yes, we are so-called so intelligent beings, and we almost control the world. Indirectly, we do not control the world, rather we are destroying the world. Human beings think themselves to be very, very intelligent. They think they are doing something great, but they are destroying the complete earth, right? Moving ahead. So the solubility of oxygen in water is around 3.08 centimeter cube in 100 centimeter cube of water. मतलब 100 ml of water अगर मैं लेता हूं, उसमें approximately 3.08 ml of oxygen हम लोगों को मिल जाएगा. कब? At 293 Kelvin room temperature पे, which is just sufficient for the vital support of marine and aquatic life. बहुत अच्छा बात है. Now the oxygen gas actually liquefies at 90 Kelvin. That means this is a negative temperature. Okay, 90 Kelvin, minus 180 degrees Celsius approximately. Yes, approximately 180 something minus degrees, and it freezes. Here it will liquefy. The gas will liquefy at 90 Kelvin and it will freeze. It will form a solid at your 55 Kelvin temperature. Now, oxygen atom is exactly having 3 stable isotopes: oxygen 16, oxygen 17, and as well as your oxygen 18. Okay, so how many isotopes does oxygen have? 3. That is your oxygen 16, 17 and 18. ओके, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सर O2 के बारे में, राइट? दो इट इज हैविंग इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, yet it is paramagnetic. Though it is having even number of electrons, yet it is paramagnetic. Okay, right? याद आ रहा है कुछ? ये पैरामैग्नेटिक कहाँ पढ़े थे? O2 molecule is paramagnetic. सॉलिड स्टेट में पढ़े थे सर. Solid state. सॉलिड स्टेट में तो पढ़े थे हम लोग, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़े थे, MOT, केमिकल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जहां पे हम लोगों ने सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s हम लोगों ने अरेंजमेंट किया. वहां पे अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें बच जाता था तो फिर हम लोग क्या करते थे वहां पे? हाँ, वहां पे हम लोग बोलते थे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जहां पे रह जाता है उसको हम लोग क्लियरली बोलते थे कि वो एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल है. अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप हो जाते हैं तो सिंपली हम लोग उसे बोलते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल. वेरी गुड. नाउ मूविंग अहेड सर, ऑक्सीजन के बारे में और भी बहुत कुछ है जो हम लोगों को पता है. क्या है वो? ऑक्सीजन विल रिएक्ट विद ऑलमोस्ट ऑल एलिमेंट्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स, सबके साथ. एस्पेशली किसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा? गोल्ड, प्लैटिनम, इनर्ट एलिमेंट्स जो है हम लोगों का, गोल्ड और प्लैटिनम, इनको छोड़ के और कुछ इनर्ट गैसेस, दैट इज योर नोबल गैसेस को छोड़ के बाकी सबके साथ हमारा ऑक्सीजन जो है कंपाउंड बनाते हैं. सी हाउ डाइवर्स द रिएक्शंस ऑफ ऑक्सीजन आर. मेटल के साथ, नॉन मेटल के साथ, अपने आप ऑक्सीजन खुद के साथ, अपने खुद के ग्रुप के मेंबर्स के साथ, ये सबके साथ रिएक्शन कर सकता है, एक्सेप्ट
gold, platinum, and few noble gases. Now, what makes the reaction of oxygen possible or feasible? आप खुद सोच रहे होंगे सर ऑक्सीजन सबके साथ नॉन मेटल के साथ मेटल के साथ सबके साथ रिएक्शन करता है, ऐसे कैसे पॉसिबल हो जा रहा है? इसके पीछे लॉजिक ये है कि ऑक्सीजन इनिशियली रिएक्ट करते वक्त एनर्जी लेता है, एनर्जी चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है उसे ब्रेक करने के लिए सबसे पहले तो ऑक्सीजन को एनर्जी चाहिए। बट ऑक्सीजन जब किसी एलिमेंट के साथ कंपाउंड बना देता है सर, वो लार्ज एनर्जी रिलीज करता है, क्योंकि वो अपना ऑक्टेट फुलफिल करके स्टेबल होता है, तो वो काफी लार्ज एनर्जी रिलीज करता है। दैट मीन्स generally all the reactions of your oxygen are exothermic in nature, which makes these reactions to be spontaneous and these reactions to be feasible. क्या ये बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So here they have given us few reactions. Okay, reactions of oxygen they have given. We all know this: calcium with oxygen, calcium oxide; aluminium with oxygen, aluminium oxide; phosphorus with oxygen, phosphorus pentaoxide; and then your carbon with oxygen, carbon dioxide; zinc sulfide with oxygen, zinc oxide. Now the second most electronegative element, अपना -2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करेगा हर जगह, सिर्फ और सिर्फ फ्लोरीन के साथ ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, वो है O2F2 में +1 एंड OF2 में +2। इसके अलावा हर जगह ये अपना -2 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ एक कंपाउंड बनाएगा। ओके, सम कंपाउंड्स आर कैटालिटिकली ऑक्सीडाइज्ड। कुछ रिएक्शंस में हम लोगों को कैटलिस्ट देना पड़ता है रिएक्शन को फर्दर प्रोसीड करवाने के लिए, अदरवाइज द रिएक्शंस are very simple, where oxygen will simply show -2 oxidation state. यहाँ पे दो रिएक्शंस है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अभी आगे जाके मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। सल्फर डाइऑक्साइड को फर्दर ऑक्सीडाइज करने के लिए हम लोग वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का कैटलिस्ट को यूज करते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा सा नेम्ड रिएक्शन है, एक अच्छा सा रिएक्शन है। हम लोग इसको कॉन्टैक्ट प्रोसेस में यूज करेंगे। Sulfur dioxide with oxygen gives sulfur trioxide in the presence of vanadium pentaoxide. याद रखेंगे vanadium pentaoxide. And one more reaction which people will be remembering is you can oxidize HCl in order to give you chlorine gas and water. आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, oxygen is a much more reactive non-metal as compared to chlorine, is much more electronegative. तो ये सिंपली ऑक्सीजन जो है क्लोरीन को डिस्प्लेस कर देता है, वाटर बनाता है, एंड देन उसके साथ साथ क्लोरीन गैस रिलीज होता है। ये दोनों के दोनों रिएक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है, बार बार पूछा जाता है, तो हम लोगों को अच्छे से याद रखना पड़ेगा। क्या ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. People who are listening to my classes properly, regularly, and are concentrating in the class, they will find previous year NEET questions and JEE mains questions to be very simple, very straightforward, and they can solve the questions very easily. Okay, so as I told you that we are not only reading it in the NCERT level, I'm also trying to teach you people at the NEET level and as well as at the JEE level. So we are not even keeping a single stone unturned. So I want you people to concentrate and read properly. Okay, so that will be it for now. We will meet again in our next class. Till then, have fun. Bye bye. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you. Thank you, sir.